You have to inform me. Yes. Sir, may Recording I say? start. Hello. Yes, sir. Aniket. Aniket. Sir, it started. Yes, sir, Start. it started. Started. Very Yes, good. sir, it is certain. हाँ चलिए. So next, who will show me? I will tell the name. This Yes, Shahid. is Shahid. मैं चहित का देख चुका हूँ मैं. ये दिखाएंगे. Sir, Shika. मुस्कान मुस्कान धाकड़. मुस्कान, आर यू देयर? मुस्कान, शो मी योर वर्क. डरने की जरूरत नहीं है बेटा, जितना है उतना दिखाइए. हाँ, कुछ कम होगा तो आप उसे कंप्लीट करना. मुस्कान, डरते नहीं है. आर यू देयर मुस्कान? नहीं है. अच्छा, ओके. चलो. प्रिंस मीना. प्रिंस मीना. प्रिंस अनम्यूट करो अपने को. अच्छा. Sir, may I? प्रिंस. प्रिंस. ओके. ओके. Sir, may I? रुक जाओ. हाँ, ये बहुत से लोग छोड़ने लगे. क्या पूछने के चक्कर में छोड़ने लगे? भाई वो तो रोज चलेगा ही काम है ना, आपको पढ़ना पड़ेगा. Sir, may चलिए. I? वेट वेट. तो हम पहले स्टार्ट करते हैं हमारा क्या वर्क चल रहा था. राइट. तो व्हाट आवर वर्क was based on Data handling. data handling. The data handling. Data handling. So I will show you. Wait, देखिए. डेटा हैंडलिंग में one thing is important, that is organizing data. Right? Okay. Organizing data, it means in this picture you can observe this one thing. Data needs to be organized to make it meaningful and deduce information from it. है ना? This is the purpose of organization, organizing the data. देखिए, in the first table, what you can see in the first table, you can observe temperature reading. This is raw data. You know what is raw data? Raw data means Sir, कि that data which is not organized. हाँ, which are the data which are not organized. As you receive, you can note it down without any manipulating. That is, without thinking whether they are in the increasing order or decreasing order or what, right? Suppose, for example, the test was conducted, in a class, the test was conducted. Okay, and suppose I said, after correction, suppose after distributing the answer sheet, I nominate any one student. Yes, you stand up and I will distribute the answer book and you note it down the marks. So if the answer, and he start noting, writing the marks. At the end, what he observed, अब हमने अगर उससे पूछा कि yes बताओ, show me, and if I want to analyze कि who obtained the maximum marks or the minimum marks, then it will take time. अब perhaps there is a possibility कि the I can give the wrong answer. कि सपोज किसी को मिला है, एक को मिला है 28.5, सेकेंड वन किसी को मिला है 28, और हमने 0.5 नहीं देख पाया, 28 को हमने मैक्सिमम बोल दिया, तो प्रॉब्लम. मगर यदि हम उनको अगर हम इस तरीके से करते, इस तरीके से अरेंज करते, ऑर्गेनाइज करते, दिस इज द हेडिंग ऑफ टुडे दिस वन, है ना. इफ वी विल ऑर्गेनाइज इट, अरेंज इट इन अ प्रॉपर मैनर, राइट,
तब क्या होता, अगर हम उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो उससे हमारे को कोई भी कंक्लूजन निकालना बहुत इजी हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए टेम्परेचर रीडिंग दिया हुआ है 26.2 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन। अब इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, अगर हम आपसे बोलते हैं कि इमीडिएटली बताइए कि व्हाट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर, तो अब आप ऊपर से लेकर के देखते आओगे, नीचे तक आओगे, तब जाकर के आपको, और उसमें भी चांसेस रॉन्ग होंगे। मगर इफ यू विल अरेंज इट इन दिस वे, देखिए दिस इज द organize such type of data, second one is organized, right? तो अब इसमें क्या क्या हुआ है, फ्रॉम लोअर टू हायर टेम्परेचर की ओर, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, right? तो अब इसमें हमारे को बहुत इजी, अच्छा ये 25 है और इंक्रीज होते होते लास्ट कितना है, 26। Can you tell me the page number, sir? हाँ, The page number. 76. राइट? तो ये बहुत इजी हो जाता है आपके पास में, ये इस तरीके से अगर ऑर्गेनाइज है तो आप इजीली उसका आंसर बता पाएंगे कि यस द हाईएस्ट टेम्परेचर इज 26.4 डिग्री सेल्सियस, द लोएस्ट टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, द रेंज, you know what is the range? Yes, sir. Sir, highest temperature minus lowest temperature. Yes, very good. This is the highest temperature range, मतलब कोई भी जो भी whatever be the data we have, either they are marks or temperature or Sir, highest level minus lowest level. lowest, है ना? तो you can क्लास 7th में भी आपको, आप लिख लीजिए range is equal to, लिख लीजिए range is equal to highest minus lowest, हाईएस्ट डाटा माइनस लोएस्ट डाटा, ऐसा कर लीजिए। तो इसका व्हाट इज द रेंज, नियति, नियति व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा विच आर आई एम शोइंग यू ऑन द बोर्ड, बताओगी क्या नियति? So we can't see that. हाँ? Yes, sir. Sir, we can't see. Yes, sir, we can't see that. You have not presented yet. Yes, sir. तो why don't you tell me? This is your duty. क्यों तुमने अभी तक इसको बताया नहीं? ओके, नो, I thought that. अभी तो आपको बोलना है ना बेटा कि सर ये नहीं, आप ये दो चीजें रोज देखनी है, ठीक है बेटा? हाँ? मैंने देखो अपन रोज करते थे। ओके, कोई बात नहीं, अभी भी आपने बता दिया, इतनी देर से हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको बोलना चाहिए था। ओके, अब आ गया, इट इज विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन हो रही विजिबल? ओके, Yes, sir. अच्छा, अब हम आपको डाटा हैंडलिंग शेयर करते हैं। ये नहीं, ये अब दिख रहा है? हेलो अनिकेत? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये दिख रहा है ना, मैं इस पे बात कर रहा था आपको कि ऑर्गेनाइजिंग डाटा पे हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग डाटा विद द मीनिंग, राइट? अगर हमको ऑर्गेनाइज कर लेते तो वी कैन कैलकुलेट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, राइट? वी कैन कैलकुलेट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर ये मैं आपको बता रहा था, ये देखिए, दिस इन द फर्स्ट पेज द टेम्परेचर रीडिंग्स आर गिवन, दिस इज रॉ डाटा, है ना? टेम्परेचर आर रिटन इन एनी वे, हाँ? and in second one temperatures are written in increasing order. So it is very easy to find what is the highest temperature, what is the lowest temperature, and what is the range. So my question was कि what is the range of this data? तो हमने नियति से पूछा। नियति, अब दिख रहा है नियति बेटा? Yes, sir. हाँ, तो नियति, tell me what is the range?
So the lowest temperature is 25 degrees Celsius and the highest temperature is 26.4. So the range of the data is 1.4 degrees Celsius. आपने किस में से किसको माइनस किया है? 25 में से 26 को कि So 26? 26. So 26. हाँ, because the formula is what? The highest minus lowest. The Yes. formula is highest minus lowest. That's why. Very nice, very nice. अब चलते हैं हम नेक्स्ट कि इसमें और देखो. This is the meaning of this one. हाँ, okay. In order to make the data meaningful and draw information from it, we need to organize the data. आवाज आ रही है उसकी वीडियो की? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. For instance, we can organize the temperature readings of a day to find the minimum and maximum temperatures. Let us now learn how to organize data and infer information from it. A group of students was asked for their favorite genre of books. Here is the result. It is difficult to deduce anything from the data provided because it is unorganized. This kind of unorganized data is called raw data. देखो, अभी आप यहाँ पे कुछ भी बताने की कंडीशन में नहीं है ना? ये इसने लिख दिया, मगर हम इससे क्या आउटपुट बता सकते हैं? ये रेड डाटा है, ठीक है? इनको हम अब ऑर्गेनाइज करेंगे, तब देन वी कैन कंक्लूड समथिंग. यस. To draw any meaningful inference from the data, we must organize the data systematically. Let's organize the data in a tabular form. Let's use tally marks to organize the given data. देखिए, Note that this tally mark is not new for you. Am I right? है ना? आपने Yes, sir. Yes, sir. 6 times Tally mark and पढ़ा है. frequency, sir. फ्रीक्वेंसी टेबल दोनों आपने पढ़े हैं. हाँ. tally marks are grouped in fives so that it's easier to count them. जब भी आप इस तरीके की टेबल बनाते हैं ना डाटा से, और ये यहाँ पे इसको टैली मार्क्स में या फिर तो ना बहुत केयरफुली करना चाहिए. अब देखिए ये जो डाटा दिए हुए रा डाटा, इसमें से हमको सिलेक्ट, कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं, तो ऐसा करने से क्या होगा? योर टैली मार्क्स विल बी रॉन्ग. सो बहुत वेरी केयरफुली यू हैव टू डू इट. When 5 is completed, then you can draw one cross line. है ना? This system is not new for you. The number of tallies against each genre indicate the number of students who like that genre. Frequency tells us the number of times a specific entry occurs. The frequency of students who like horror books is 2. The frequency of students who like mystery books is 8. This table is known as the frequency distribution table. Most times, the raw data obtained is very large. For example, let's consider the number of coupons sold by 40 students. देखिए, अब जो भी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रुपिंग डाटा, आपने लास्ट ईयर तक ग्रुपिंग डाटा नहीं पढ़ा है, राइट? दिस इज न्यू फॉर यू. हाँ, एंड ग्रुपिंग डाटा एक वन मोर टाइप ऑफ ग्राफ हमने अभी आपका बचा हुआ था, आपको ध्यान हो, देखिए उसमें इन द बुक हिस्टोग्राम इज गिवन, दिया हुआ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And we have all discussed about pictograph, bar graph, double bar graph, right? इतने हमने आपसे in the last class we have already discussed. Am I right?
right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. But today we will discuss about histogram. So histogram is a special type of graph which we can draw with the help of grouping data. What is the meaning of grouping data? Where we will use the grouping data? For example, if when the datas are too much large, जैसे 40 स्टूडेंट्स या 100 स्टूडेंट 200 स्टूडेंट्स अगर होते हैं, तो फिर हमारे को क्या होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक द टैली मार्क्स देन फ्रीक्वेंसी टेबल, राइट? इन दैट कंडीशन वी कैन अरेंज इन अ ग्रुप, राइट? ग्रुप मतलब हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि वो स्टूडेंट्स जिनमें 0 से लेकर के 5 मार्क्स और 10 मार्क्स, हम उनको सबको एक में रखते हैं। 10 to 21 आपने लास्ट ईयर पढ़ा है सर। 20 to 30 एक अनादर ग्रुप वी कैन, क्यों भाई स्टूडेंट्स? नो सर, नो सर। No, sir. है ना? तो ग्रुपिंग डेटा नहीं पढ़ा है। नहीं रहा, ग्रुपिंग डेटा नहीं पढ़ा। ग्रुपिंग बनाते हैं और ग्रुपिंग से फिर हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। ग्रुपिंग से फिर तो आप देखिए ग्रुपिंग को बहुत ध्यान से समझना है, दिस इज न्यू फॉर यू, ओके? A frequency distribution table for each of these entries will be tedious. Also, the table will end up becoming very long. Instead, we can make groups based on these entries and then make a frequency distribution table. First, we have to decide the range for the groups. This is done by identifying the smallest and largest numbers in the raw data. ओके, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, उसका रेंज बनाते हैं। रेंज मतलब अभी हमने डिस्कस किया, नेति हैज ऑलरेडी गिवन, शी हैज ऑलरेडी गिवन द आंसर, द हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो इसमें भी इन डाटास व्हेन वी आर गोइंग फॉर ग्रुपिंग, तो हम पहले इसका रेंज बना लेते हैं। You can see the smallest number is 3 and the largest is 46. So you can group the data into groups with a range of 10. As the smallest number in the raw data is 3, our first range will be 0 to 10. As the largest number is 46, our last range will be 40 to 50. देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी उसने आपको बताया कि यू कैन सिलेक्ट द लोएस्ट डाटा एंड द हाईएस्ट, दैट इज रेंज आपने सिलेक्ट कर लिया। लोएस्ट इज 3 एंड द हाईएस्ट इज व्हाट इज 46। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फिर क्या हुआ, द आफ्टर सिलेक्टिंग द रेंज, अब आपको पता चल गया कि इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 43। कितना आ जाएगा, 43। क्यों भाई, am I right? 46 minus 3 is 43, range is 43। मतलब हम अगर 10-10 का ग्रुप बना लें तो कितने ग्रुप हम बना पाएंगे 43 में? 4 और 5 ग्रुप्स हम बना पाएंगे। कितने ग्रुप्स बना पाएंगे? 10-10 लेंगे, 10 4 जा 43 रह जाएंगे, that can be accommodated in the next group, that is 5 ग्रुप्स हम बहुत अच्छे से बना सकते हैं, राइट? 10-10 केस में हम 5-5 भी ले सकते थे कि 0 to 5-5, मगर उसमें फिर हमारा वर्क बहुत टीडियस हो जाता है। जिस चीज से हम बचने के लिए हम ग्रुपिंग कर रहे थे, द सेम प्रॉब्लम फिर यहाँ पर क्रिएट हो जाती है ना? देन व्हाट इज एडवाइजेबल फॉर यू कि आप अगर जैसे 40-50 है तो 10-10 का लेंगे तो 4-5 ग्रुप्स बन जाएंगे, वो बहुत का। अब ग्रुप बनाने में क्या ध्यान रखना है वो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ इसने 0 से स्टार्ट किया, जबकि सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसका? द स्मॉलेस्ट नंबर इज व्हाट? 3। हाईएस्ट नंबर इज 46। मगर उसने स्टार्ट किया है कहाँ से? 0 से, और एंड कहाँ पर कर रहा है? 50 पर। 10-10 का ग्रुप ले रहा है। तो हमको क्या करना पड़ता है, यू ऑल्सो बी वेरी केयरफुल while मेकिंग द ग्रुप्स। फर्स्ट यू सिलेक्ट the lowest and highest, make the range और divide it कि हाँ 10-10 के बन जाएंगे, आप समझ गए, ठीक है?
कितने बन जाएंगे वो भी आपको। अब आपको क्या करना है, ये देखना है कि सबसे छोटा आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं अगर, तो जो 3 है, अगर हम इसको यहाँ 3 से स्टार्ट करते, 3 to 13, फिर तो वो बहुत बेकार हो जाता। तो हमने 0 से स्टार्ट किया, तो जो इसका लोएस्ट वन है 3, इट विल लाई विद इन दिस ग्रुप 0 to 10, है ना। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि बिल्कुल बॉर्डर पर 3 हो, हमने उससे और छोटा 0 से स्टार्ट कर लिया। दे आर वेरी कंफर्टेबल कि हाँ 0 से 10 में आ रहा है, बात समझ में। बाय द सेम वे जो हाईएस्ट है, हम इसको यहाँ 46 पे नहीं बंद कर देंगे, हम इसको चूंकि हम 10-10 का ग्रुप ले रहे हैं, तो हमने लास्ट लिया 40 to 50, इसके बीच में हमारा हाईएस्ट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा ओके सर। अब Yes, देखिए, sir. अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने ये ले लिया, तो अब इसने एक ग्रुप बनाना स्टार्ट किया 0 to 10, फिर वो कौन सा बनाएगा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 बनाएगा, ठीक है। इतने ग्रुप बनाने के बाद में आपके पास में क्या होगा कि एक चीज हो जाएगी, ये ग्रुप बनाने के बाद में आप जब इसमें यहाँ से सिलेक्ट करेंगे नंबर्स, वहाँ बहुत इम्पोर्टेंट आपका रोल होगा। अब अगर किसी को 0 मार्क्स मिला है, तो वो इसी ग्रुप में आएगा। कहाँ तक के नंबर आएंगे इसमें, 0 से लेके 9 तक। कौन से मार्क्स, द स्टूडेंट्स दोज हु ऑब्टेन मार्क्स between 0 to 9, not 10. 0 to 9 you can write in the first group. उनको किस में ले लोगे, फर्स्ट ग्रुप में। 10 वाला नहीं लोगे, 10 कहाँ पर जाएगा, नेक्स्ट उसमें, ठीक है। हाईएस्ट वाला उसमें नहीं आता है, कहाँ तक के आते हैं, उससे एक पहले तक। ये बात आ रही है आपको, क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है. सर एक डाउट है हाँ बोलो। सर, अगर सर हम जो सर 0 to 10 का ग्रुप है, तो सर 0 to 9 का ही ग्रुप बनाएंगे। तो सर अगर हमारी सर नंबर हमारे पास सर 50 होता है, तो हम सर 50 से 60 भी बनाते हैं फिर सर एक और ग्रुप। क्या, फिर से बोलो, फिर से। सर अगर यहाँ पे इस लिस्ट में सर 50 नंबर भी होता, तो सर हमें 50 से 60 वाला ग्रुप भी बनाना पड़ता। हाँ, हम उस तरीके से बनाते हैं कि वो नेक्स्ट में जाता। हाँ, बहुत सही क्वेश्चन किया, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, बहुत सही बोले सर बच्चे। ठीक है भाई, ये पूछ रहा है कि मान लीजिए लास्ट एक नंबर आपने ये बनाया 50 ही होता, और आप बोल रहे हो कि लास्ट वाला नहीं लेना है, यही बोल रहा है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक नेक्स्ट ग्रुप बनाएंगे। यस, इसीलिए तो हमने इसको ऐसा बनाया है कि देखिए 46 पर एंड नहीं किया, व्हेन द हाईएस्ट नंबर इज 46, बट वी कैन नॉट स्टॉप इट एट 46। कहाँ पर स्टॉप किया हमने इसको, 50 पर, कि वो इसके अंदर आ जाएगा। समझ रहे हो सरवर जी? यस सर। तो हमने बनाया ही ऐसा है कि वो हाईएस्ट वाला इसके अंदर आ जाए, उसकी रेंज उसकी बॉर्डर पर नहीं है। यही आपको उस समय जब आप इसको ग्रुपिंग करोगे ना, तो ये आपको दिमाग लगाना पड़ता है। ओके बेटा? यस सर। चलिए नेक्स्ट देखिए। The ranges in between will be 10 to 20, 20 to 30, and 30 to 40. Now, let's create the frequency distribution table. The first column will contain the groups. We have already identified the ranges for the groups. Note that for the groups listed here, the highest limit of a range is also the lowest limit of the next range. देखिए, ये जो 0 और 10 लिखा हुआ है ना, ये हाईएस्ट इसकी लिमिट कहलाती है, और 0 इज द लोएस्ट लिमिट एंड 10 इज द हाईएस्ट लिमिट। फिर 10 यहाँ पर नेक्स्ट, उसकी 10 to 20 के लिए 10 इज द लोएस्ट, 20 इज द हाईएस्ट लिमिट। आ रहा है समझ में? ठीक है। हर ग्रुप का लोएस्ट और हाईएस्ट होता है, ठीक है। For the sake of grouping data, the lower limit will be taken into consideration. For example, 10 will belong to the range 10 to 20,
and not to the range 0 to 10. Let us now add the tally marks for each range and write the frequency. देखिए 34 पर ये आपका ब्लू लाइन को इसको दिखा रहा है, येलो को, यहाँ पर देखिए है। अब 34 कहाँ बिलोंग करने वाला है? 30 to 40 के बीच में, इसलिए यहाँ पर इसने, इसके पहले भी एक आ चुका है बिटवीन 30 to 40, 30 आया था, हाँ हम 30 ले सकते हैं, मगर ये 30 इसने यहाँ नहीं लिया। देखिए 20 to 30 के रेंज में इसने इस 30 को नहीं लिया हुआ था। ये 30 कहाँ पर जाएगा? ये नेक्स्ट इधर पर आ रहा है। आ रही बात समझ में सबको? ये दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ स्टूडेंट्स। अब देखिए ये 10 पर रुका, मैंने रोका अपने आप को। ये 10 यहाँ देखिए, ये रॉ डाटा में दिस 10 वो कहाँ ले रहा है? इस वाले ग्रुप में ले रहा है, 10 to 20 में। कहाँ नहीं लेगा? 0 to 10 में नहीं काउंट करेगा उसे, ठीक है। हाईएस्ट वाले पर नहीं काउंट होता, कहाँ पर जाता है? वो लोएस्ट वाले। यू गॉट द पॉइंट एवरीवन? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी को नहीं आया हो तो पूछ लो। वेरी इजी। केवल प्रॉब्लम किस जगह पर है? प्रॉब्लम, Thus, we have presented the data in groups. Data presented in such a manner is said to be grouped, and the distribution is called grouped frequency distribution. Each group is called a class interval. From this table, we can easily infer that most students sold 20 to 30 coupons, while only 2 students sold 40 to 50 coupons. Thus, we see that by organizing data systematically, we can easily interpret the data. हाँ, तो देखिए इसमें केवल प्रॉब्लम किस जगह पर आएगी? जहां पर वो बाउंड्री लाइन वाले को बचा के चलना है। बन जाएगा सबसे करते? हेलो, Yes, sir. है ना? यस सर। देखिए आपकी बुक में भी Yes, ऐसे sir. क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए इन योर बुक द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन। तो देखिए बुक में जो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको आप ट्राई करने की कोशिश करेंगे। कौन, जहां पर लिखा होगा ना कि ड्रॉ हिस्टोग्राम, लिखा है ना, आई थिंक 4th क्वेश्चन है। देखिए कौन सा क्वेश्चन है? The fourth year, sir. है ना, 4th भी है, 2-3 क्वेश्चन है हिस्टोग्राम के। कौन कौन? First question भी है। फर्स्ट में तो वो केवल एक ये पूछ रहा है कि वेयर वी यूज द हिस्टोग्राम। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? रीड इट। For which of these would you use a histogram to show the data? The number of letters for different areas in postman's bag, the height of competitors in an athletics meet, the number of cassettes produced by 5 companies, the number of passenger boarding trains from 7 a.m. to 7 p.m. at a station. हाँ, तो अब इनमें से आपको बताना है कि किस, इन विच टाइप ऑफ डाटा यू कैन यूज द हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम अभी हमने आपको ये बताया कि अगर आप ऐसे ग्रुप बना सको, आपको रीड करना है क्वेश्चन को। देखिए अब हमने आपको पूरा एक टेबल को इधर पे चेंज करके दिखाया हुआ है। तो आप पहला वाला जैसे आप रीड करोगे, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है रीड करो। फर्स्ट क्या था? फर्स्ट The वन, number of letters The for number of letters for different areas in a postman's bag. कोई एक जन पढ़वा ली, इसको पढ़ने दो अग्रवाल को। हाँ The number of letters for different areas in a postman's bag. ओके, तो अब इसमें क्या होगा? कैन यू मेक इट इन अ ग्रुप? नंबर नो सर। No, sir. भाई पोस्टमैन आया, लेटर लाया, बी ब्लॉक के हैं, सी ब्लॉक के हैं, बी ब्लॉक के हैं, ए ब्लॉक के हैं, तो उसको तो बहुत अच्छा होगा कि वो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सके, बार ग्राफ से।
क्यों भाई? Yes, ठीक है sir. ना? Yes, तो yes. बार ग्राफ इज मोर कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट भाई। अगर वो बार ग्राफ ले लेगा तो एक्स एक्सिस पर लेगा कि ब्लॉक्स ए बी सी डी, और वाई एक्सिस पर लेगा हाउ मेनी लेटर्स फ्रॉम ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी। तो हिस्टोग्राम ग्रुपिंग इज, वी कांट मेक ग्रुप, है ना? क्लियर आ रही बात समझ में? हैंड हिस्टोग्राम इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सेकेंड वन। The height of competitors in an athletics meet. अब बताइए हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर। सर ये भी बार ग्राफ से हो जाएगा? यस सर, ये होगा। ये हिस्टोग्राम हो सकता है इसमें? नो सर, सर ये क्यों? बार ग्राफ से हो जाएगा। क्यों? हाइट है आपके क्लास के सारे स्टूडेंट्स की, हमने हाइट लिख दी। सर हिस्टोग्राम से ही होगा। हाँ, ये हिस्टोग्राम ज्यादा सही यस है। सर, यस सर। भाई हमने मान लीजिए इन डाटास की, इन प्लेस ऑफ दीज डाटास इफ आई विल राइट द हाइट ऑफ द योर क्लास स्टूडेंट्स, तो अब उसको आप अरेंज कर पाओगे ना कि 148 सेंटीमीटर से लेकर के 130 सेंटीमीटर तक, 130 से 140 के बीच में कितने लोगों की हाइट है वो ले लोगे, फिर 140 टू 150 के बीच में कितने लोगों की हाइट है उनको, तो उससे ग्रुपिंग इज पॉसिबल और नॉट स्टूडेंट? पॉसिबल, पॉसिबल। पॉसिबल, बिकॉज ग्रुपिंग इज पॉसिबल, सो वी कैन डू इट, है ना? यस, अब Yes, आया sir. now you got the idea where we can use the histogram. Yes, sir. Okay, so now I will show you something extra. चलिए अब थोड़े से हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाते हैं फर्स्ट। Nothing else, and now we started with chapter number 5. The name of the chapter is data handling, and this is question number 1 of exercise 5.1. So in this question we have for which of these would you use a histogram to show the data? अब यहाँ पे कुछ सीक्वेंस गिवन है, आपको ये बता दें कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किस चीज में हम हिस्टोग्राम यूज करेंगे। अब हिस्टोग्राम में एक चीज होती है कि जब हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं दे आर बेस्ड ऑन क्लास इंटरवल, जैसे जिस सिचुएशन में हम क्लास इंटरवल्स बना सके। क्लास इंटरवल मीन जैसे कि कोई भी लेट्स सपोज यहाँ पे एग्जांपल आएगा हाइट्स का, तो अगर हम हाइट ले रहे हैं बच्चों की तो वी कैन टेक फ्रॉम 5 to 10, then 10 to 20, 10 20 to 30 and so on। तो हम ऐसे इंटरवल्स ले रहे हैं, these are class intervals। तो जहाँ जहाँ पे क्लास इंटरवल्स पॉसिबल होगा वहाँ पे हम डाटा को हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। First one we have is the number of letters for different areas in the postman's bag। अब postman के पास एक बैग है, उसमें अलग-अलग जगह पे अलग-अलग एरियाज की जो लेटर्स है ना, जैसे एक जगह पे कितने नंबर ऑफ लेटर्स है, इस जगह पे कितने नंबर ऑफ लेटर्स है, सो इसको आप हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते बिकॉज इस डाटा को आप क्लास इंटरवल्स में डिवाइड नहीं कर सकते, राइट? अब एक जगह पे नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं इसमें आप कैसे डिवाइड करोगे, राइट? So this means इस केस में हम हिस्टोग्राम यूज नहीं कर सकते। Then the next one we have जो भी हमने डिस्कस किया, the height of competitors in an athletic meet। अब यहाँ पे है कि हम जो कॉम्पिटिटर्स है सबकी हाइट मेजर कर रहे हैं, सो अगर हम हाइट मेजर करके उसमें क्लास इंटरवल बना सकते हैं, जैसे 5 फीट से लेके 6 फीट तक जिसकी हाइट क्लियर, 3 फीट से 4 फीट तक या 4 फीट से 5 फीट तक, ऐसे आप क्लास इंटरवल्स में डिवाइड। ये सेम थिंग वी वर डिस्कसिंग ना कि आप ग्रुप बना सकते हैं इसमें, ठीक है? वही Yes, आपका sir. फर्स्ट क्वेश्चन है। यस, कर सकते हैं, so this means इसको हम हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Then the third one we have is the number of cassettes produced by 5 companies। Again we have number of cassettes। अब 5 अलग-अलग कंपनीज है, हर कंपनी कितनी कैसेट्स प्रोड्यूस कर रही है, इसके लिए आप क्लास इंटरवल नहीं बना सकते बिकॉज इसका डिवाइड नहीं कर सकते। दिस मींस इसके लिए हम हिस्टोग्राम यूज नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट वन वी हैव द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM at a station। अब यहाँ पे बोला है कि नंबर ऑफ पीपल हम देखते हैं जो सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे स्टेशन में ट्रेन बोर्ड करें। अब इसको तो आप डिवाइड कर सकते हैं, सुबह 7 से लेकर शाम के 7 तक देखते हैं तो 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, ऐसे आप लोग से बना सकते हो। 7 से 8 के बीच में नंबर ऑफ पीपल लिख दिया, 8 से 9 के बीच में नंबर ऑफ पीपल लिख दिया, तो यहाँ क्लास इंटरवल्स कर सकते हैं।
So this means is data from histogram to represent. ये आया समझ में? Why we can use the last one for Yes, sir. histogram? सर आ गया. यस सर सर आ गया. Yes, sir. सिंपल कॉन्सेप्ट है, जहां हम ग्रुप बना सके वहां पर हम करेंगे. ठीक है? ओके. Person. Okay, so this was question number 1. Now let's come to the next question. चलिए, तो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन आया समझ में. ठीक है? दिस इज द वे बाय विच वी कैन solve the first one. Right? देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन भी देखिए. Right? How to solve second question? Hello everyone, this is Mansi from Inequality Judging. Coming to question number 2, exercise 1.1. So in this question we have the shoppers who came to a departmental store are marked as. अब एक departmental store है, उसमें जैसे जैसे shoppers आएंगे तो हम उनको मार्क करते चलेंगे. Like if is a man, so N, woman है तो W, boy है तो B, and if she is a girl तो G. The following list gives the shoppers who came during the first hour of the morning. अब starting के 1 घंटे के कितने लोग आए और ये उनको मार्क्स मिले. Now what we have to do is we have to make a frequency. अच्छा, आप एक काम करिए. आप एवरीबडी, आपके पास में बुक है ना? सबके पास में भी? ठीक है? Yes, ये sir. क्वेश्चन Yes, sir. बोर्ड पर क्वेश्चन भी दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? Yes, sir. आप जल्दी से केवल ये बनाना शुरू करिए, फिर हम मैडम का भी आंसर दिखाएंगे. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए यूजिंग टैली मार्क्स एंड इतना करिए. देख, फिर हम आई विल शो यू द आंसर. जल्दी से. यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है? एम विल रिप्रेजेंट. सर क्वेश्चन लिखना है? नहीं, आपको केवल अभी उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करनी है. ठीक है? डू इट विद इन 2-3 मिनट्स. यू शुड कंप्लीट इट. है ना? जल्दी करिए. कंप्लीट करिए. देन आई विल, किसी को डाउट हो कि इसमें हम किस तरीके से बना सकते हैं तो वो मुझसे कांटेक्ट. क्यों भाई, वीडियो मेरा वो ऑन है ना? क्यों? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. अनिकेत, ये ध्यान रखना कि कभी मेरा कैमरा बंद ना रहे. हाँ, ये भी आप बताना. हाँ, बंद दिखे तो आप बता देंगे कि सर कैमरा बंद. यस. सारे लोगों को करना है, बॉयज एंड गर्ल्स, एवरीवन. This is not new, I think, for you. आप बना लेंगे, then we will check it कि जो आपने बनाया वो सही है कि नहीं. सर हो गया. सबको करने दो जल्दी से. 1 मोर, 1 मिनट और है सबके पास में. इसमें हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर टोटल? 4. हाँ, 4. नहीं, मतलब कितने In मैन? all? हाँ, इन ऑल 60. 60. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. No, sir. अच्छा, तो एक चीज याद रखनी, क्वेश्चन में देता है वैसे, तो जितना आप फ्रीक्वेंसी और उनको ऐड करोगे वो उस नंबर के इक्वल आना चाहिए.
बना लिया भाई? गर्ल्स प्रिपेयर्ड? हेलो, चलिए देखें आंसर। टेलीमार्क्स यूज करके हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है एंड देन ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट, और उसकी वैल्यूज टेबल की हेल्प से हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, नाउ यहाँ पे जो वर्ड आया है टेलीमार्क्स, व्हाट आर टेलीमार्क्स? टेलीमार्क्स होता है जब हम नंबर्स को लाइंस की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 1 लिखना है तो 1 लाइन दिस रिप्रेजेंट्स 1, 2 लिखना है 2 ये तो आपको पता है, ठीक है? तो हमारे पास बैचेस है लाइक ए भी तब ये आ रहा है आपका भी 28 आ रहा है क्या? यस सर, यस सर, 28 ही आ रहा है। ये देखिए, सारे लोग चेक करिए, W28 है, M15, B5 और गर्ल्स कितनी है? 12 है। देखिए इनका सम 60 आप बोल रहे हैं, 28 हो रहा है। यस सर, 60 हो रहा है। हाँ, अब इसका ग्राफ भी आपको ड्रॉ करना है। ग्राफ बनेगा आपसे ड्रॉ करते? यस सर, बन जाएगा। यस सर, बन जाएगा। यस सर। I will check it in tomorrow's. देखो वो she is going to draw the graph also. You check it. शॉपर्स तो हम देखना स्केल कितना लेंगे, स्केल कितना लेंगे मतलब अब यहाँ पे नंबर ऑफ शॉपर्स में मैक्सिमम नंबर है 28। अब आप 1 मंथ का अगर ध्यान रखें तो 28 तो बहुत लेंगे पड़ेगा। सो उसकी जगह व्हाट वी कैन डू इज हम 5 का इंटरवल ले लेते हैं। सो 5 10 15 20 25 30 इस तरह से लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद 5 10 15 20 25 and 30। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको प्लॉट कर देंगे। सो वुमेन आर 28, हमारा सबसे पहला वाला वो होगा 28। But you will draw it in the graph copy. Okay, students? हाँ, one thing you can do कि you can paste the graph in the your answer sheet, मगर ग्राफ में ही बनाना है इसको। ओके से थोड़ा सा नीचे ये हम नाइट स्ट्रेट लाइन बना लेंगे एंड देन एक बार की तरह इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज 28। नेक्स्ट वी हैव नंबर ऑफ men which are 15। सो यहाँ 15 रिप्रेजेंट करने के लिए दिस इज फॉर 15 ऐसे स्ट्रेट लाइन नीचे देन बार ड्रॉ। दिस इज 15। नेक्स्ट वी हैव नंबर ऑफ boys which is 5। So this means क्या ज़्यादा होगी इसको now number of boys is 5, so वो आएगा यहाँ पे this will be for 4। next we have number of girls which is 12, so 12 का क्या आएगा 10 से थोड़ा सा ऊपर, so it will be round here। this is okay। अब ये हमारा बैकग्राउंड वीडियो है और दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए तो अब नेक्स्ट टाइम व्हाट यू कैन डू कि आप अपना जो आपके पास में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप उन्हें करेंगे। 2 क्वेश्चंस तो अभी दिखा दिए, टोटल हाउ मेनी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आप कंप्लीट करेंगे उन्हें। 5 है। 5 तो कल आई विल चेक इट टुमारो, ठीक है बेटा? यस सर। ओके सर। थैंक यू राम सर। बच्चों।